پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے جو مبارکبادیوں کی ہے؟ اب تک 6 مبارکبادیاں ہو چکی ہیں۔ کوئی بھی کھڑا ہو کر پہلے ان کو سنائے، پھر ہم اگلا پیسج جو ہے وہ تلاوت کریں گے۔ کوئی بھی؟ ہاں جی، اوکے۔ اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہے وہ جو غریب ہیں، مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ اسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ آمین آمین، زوردار تالیاں بجائیں گی، شاباش، ویری گڈ۔ اور کوئی ینگ مین؟ ینگ مین کو یاد نہیں ہے، اوکے۔ آئیں کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم آگے بڑھیں گے، اور مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یہ 7ویں مبارکبادی ہے جو کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی واز میں اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ پیغام جو انہوں نے دیا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں بہت دفعہ لوگ اس پیغام کو عام دنیا کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں۔ دنیوی لوگوں کے مابین صلح ہو یا کوئی صلح کرائے تو لوگ یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو، یہاں تک کہ کئی دفعہ بینرز پہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے، اور کسی کو اس کے لیے بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں کی صلح کرائی ہے تو یہ خدا کا کیا ہے؟ بیٹا ہے۔ یاد رکھیں کہ کلام مقدس کا یہ حصہ جو ہماری رہنمائی کے لیے بیان کیا گیا ہے، یہ قطعاً بالکل بھی دنیوی لوگوں کے مابین صلح ہونے یا صلح کرانے کے تعلق سے بیان نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہاں پہ بات خداوند یسوع مسیح کسی اور سیغے میں بیان کر رہے ہیں، تذکرہ کسی اور سلسلے میں کر رہے ہیں، جس کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جس صلح کی بات یہاں بائبل مقدس میں کی جا رہی ہے، یہ صلح اور دنیوی لوگوں کے مابین صلح بالکل اپوزٹ معاملہ ہے، فرق معاملہ ہے۔ اور یہاں پر صلح کرانے والے اور دنیوی لوگوں کے مابین کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کسی کے ہاں کوئی اور دنگا فساد ہے، اس کے مابین صلح کرانے والے لوگ جو ہیں، ان میں اور یہاں جس بات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا جاننا جو ہے
وہ بڑا ضروری ہے. دنیوی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا دو فریق لڑتے ہیں تو ایک شخص آ کر یا کوئی خاندان آ کر ان کی صلح کرا دیتا ہے, یا کہیں جنگ ہو رہی ہے کوئی ملک اس میں انٹرفیئر کرتا ہے اور مختلف طریقوں سے ایفرٹس کر کے یا تگ و دو کر کے ان کی صلح کرا دیتا ہے. تو کئی دفعہ اس حوالے کو وہاں پر بھی استعمال کر دیا جاتا ہے. جنگ بندی کے کام کو, لڑائی کے تھم جانے کو, رک جانے کو بھی اس صلح کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں یہ صلح جو ہے یہ اس صلح سے بہت منفرد ہے, ڈیفرنٹ ہے, الگ ہے. اس کا جو تعلق ہے اس صلح کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہے. بائبل مقدس کا آغاز اور بائبل مقدس کا اختتام, یہاں پر بھی جو صلح ہے وہ بہت معنی خیز ہے. جیسے ابتدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے بنی نوع انسان کو بنایا ہے, آدم اور حوا کو تخلیق کیا ہے اور انہیں جیتی جان کیا ہے, اس وقت خدا باپ اور انسان کے مابین بہت صلح سلامتی ہے کہ سب خدا کی حضوری میں ہیں, مل کر اس سے گفتگو ہوتی ہے, ورشپ ہوتی ہے, تعریف تمجید ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد ایک ایسا سلسلہ چلا ہے جہاں یہ صلح جو ہے, یہ سلامتی جو ہے, پیس جو ہے, یہ منقطع ہو گیا ہے. اور اس صلح سلامتی اور پیس کے منقطع ہو جانے کے بعد خدا نے پھر ایک ایسا وسیلہ ذریعہ بنایا ہے جس نے بنی نوع انسان کو پھر سے اس سٹیٹس میں بحال کیا ہے اور اسی باغ عدن والے ماحول کو پھر سے کریٹ کیا ہے تاکہ بنی نوع انسان جو ہیں اور جو آدم اور حوا ہے اور اس طرح بہت سارے اور لوگ جو ہیں جو خدا کی اس صلح سلامتی سے باہر آ چکے ہیں, انہیں پھر سے اس سلامتی میں شامل کیا جائے. اور اس صلح سلامتی کے کام کو پاسبل کرنے کے لیے, ممکن کرنے کے لیے خداوند زندہ خدا نے اپنے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیج دیا, جس نے اپنی جان کا کفارہ دے کر, کیسے اپنی جان کا کفارہ دے کر. اس لیے خدا کا کلام یسایا نبی کے صحیفے کی معرفت ہم سے ہم کلام ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ کیا ہے؟ سلامتی کا, یعنی صلح کا شہزادہ ہے. اب جو حقیقی صلح کرانے والا ہے, جس کے تعلق سے یہاں پہ لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کیا کراتے ہیں, صلح کراتے ہیں. حقیقی صلح یہ ہے جو خدا باپ اور بنی نوع انسان میں ہوئی ہے, اور کرانے والا کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے. کون ہے؟ اس کا بیٹا ہے. تو اس لیے کہا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں, مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں, کیونکہ ان کا سٹیٹس جیسے خداوند یسوع مسیح کا ہے کہ وہ بیٹا ہے, تو اسی طرح سے ان کو بھی یہ شرف, یہ پذیرائی اور یہ عزت افزائی عطا کی گئی ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے. یعنی وہ کام جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے, وہ کام جتنے لوگ کرتے ہیں وہ خدا کے کیا کہلائیں گے؟ بیٹے کہلائیں گے. کیونکہ جو کام بیٹے نے کیا ہے وہی ہم کریں گے تو ہم اس کے بیٹے کہلائیں گے. اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ صلح جو ہے اور جسمانی لوگوں کے مابین صلح جو ہے, اس میں بہت زیادہ فرق ہے. آمین. کتنے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ شاباش, ویری گڈ, پریز گاڈ. اب بائبل مقدس میں اگر ہم صلح یا سلامتی کے حوالہ جات پر غور کریں تو تقریباً 400 ایسے حوالہ جات ہیں جو سلامتی اور صلح کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں. اور یہاں جس صلح کی بات کی جا رہی ہے, یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کی. خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کو مبارک کہہ رہے ہیں جو
اس کے ساتھ اس صلح میں شریک ہیں، یعنی جو اس کے ساتھ مل کر اس مشن ورک کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں، جو لوگوں کا میل ملاپ خدا سے کراتے ہیں، جو لوگوں کی توجہ خدا کی طرف دلاتے ہیں، جو لوگوں کو پھر سے باغ عدن کے ماحول میں لے آتے ہیں، وہ ہیں خدا کے بیٹے۔ کون ہے خدا کے بیٹے؟ جو لوگوں کو خدا کی طرف قائل کرتے ہیں، مائل کرتے ہیں، اور ان کو خداوند کی طرف لاتے ہیں تاکہ وہ توبہ کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے انہیں ترک کریں اور اس کی راست بازی میں شامل ہو جائیں۔ اب یہ کام جو ہے یہ کلام مقدس کے مطابق کوئی پادری صاحبان ہی کا نہیں ہے، مبشروں ہی کا نہیں ہے، اور اسی طرح سے ٹیچرز استادوں ہی کا نہیں ہے۔ یہ کام ہر ایماندار کی ذمہ داری میں دیا گیا ہے، چونکہ جو ارشاد اعظم ہے وہ کسی بھی پادری صاحب کے لیے، مبشر کے لیے، استاد کے لیے، نبی کے لیے، رسول کے لیے نہیں، یہ بھی انکلوڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ سبھی ایمانداروں کو یہ تعلیم دی گئی ہے۔ آئیں ذرا میرے ساتھ دیکھ لیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 28واں باب، 19ویں آیت میں لکھا ہے، پس تم جا کر کیا کرو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ اب یاد رکھیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ ارشاد اعظم گریٹ کمیشن جو ہے وہ اپنے لوگوں کو عطا کیا ہے، اس وقت اسپیسیفکلی صرف اور صرف شاگرد تھے جو خداوند یسوع مسیح کے قریب تھے، اور ان کو یہ مشن دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ڈسائپلز کے لیے ہے، یہ تمام ایمانداروں کے لیے ہے، یہ تمام چرچ اور کلیسیا کے لیے ہے۔ پس تم جا کر کیا کرو؟ سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ یہ میرا کام ہے، یہ آپ کا کام ہے، یہ بھائیوں بہنوں کا کام ہے، بزرگوں کا کام ہے، ایمانداروں کا کام ہے، کلیسیا چرچ کا کام ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو اس صلح میں شامل کریں۔ آمین۔ سو اس بات کو جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، اس صلح کو خداوند یسوع مسیح نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اس صلح کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا کانٹیکس اس کا یا بیک گراؤنڈ جو ہے یہودی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں تو ہمیں اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، سمجھ آئے گی۔ یہودی عام طور پہ جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو جیسے ہم سلام کہتے ہیں تو وہ شالوم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کون سا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ شالوم۔ شالوم کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی۔ کیا مطلب ہے؟ سلامتی یا صلح۔ اب یہی مطلب نہیں ہے اس کا۔ جب یہودی ایک دوسرے کو شالوم کہتے ہیں، سلامتی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے دعا ہے جو وہ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب یہ تو ادھورا مطلب ہوا کہ میں آپ کی صلح چاہتا ہوں، وہ کس سے چاہتا ہوں، کیسے چاہتا ہوں، یہ ادھورا مطلب ہے۔ آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، کیسے چاہتا ہوں، کس میں سلامتی چاہتا ہوں، یہ ادھورا ہے اگر ہم صرف اتنا جانتے ہیں۔ شالوم تو ایک پورا پیکج ہے دعا کا، جس کا آدھا مطلب ہم سمجھتے ہیں سلامتی یا صلح، لیکن اس کا پورا پیکج، اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک دعا ہے جو یہودی لوگ جب شالوم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دعا ہے جو وہ بچوں اور بڑوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں جو رواج ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے سلام کریں۔ بچے کیا کریں؟ بڑوں کو سلام کریں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، کوئی بچہ سلام نہ کرے تو ہم گلا کرتے ہیں، اس کے ماں باپ کو جا کے علامہ دیتے ہیں، شکایت، لو جی تہاڈے بچے نے مجھے سلام نہیں کی تھی۔ ایسا ہی ہے نا۔ لیکن بائبل مقدس کے مطابق جو یہودی قانون ہے، اس کے مطابق بچے سلام نہیں کرتے، بچے سلام نہیں کرتے، بڑے سلام کرتے ہیں۔ بڑے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں۔ بڑے ان کو شالوم کہتے ہیں۔ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک پورا پیکج جو ہے نا دعا کا،
वो बड़े जो हैं, जो उम्र में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, वो अपने से छोटे लोगों को सलाम करते हैं। सलाम का मतलब है कि उन पर वो दुआ भेजते हैं जो शालोम के पूरे हिस्से में मौजूद है। अब वो दुआ क्या है जो वो यहूदी लोग इसके बैकग्राउंड में करते हैं? वो कहते हैं कि मैं दुआ गो हूं कि खुदा की सारी रास्तबाजी आपकी जिंदगी में आए, खुदा की सारी रास्तबाजी आपकी जिंदगी में आए और खुदा की सारी नेकी, अच्छाई या गुडनेस आप में काम करना शुरू करे। अब ये बच्चे कहेंगे या बड़े कहेंगे? बड़े कहेंगे। हमारे अगर कोई बच्चा सलाम ना करे किसी को, तो आप सलाम करें। हमें सलाम बच्चों को करनी चाहिए। आमीन। आइंदा से किसी से नाराज नहीं होना, फलाने मुझे सलाम नहीं की, फलाने ये नहीं किया। ओके, अगर कोई आपको सलाम नहीं करता, अगर कोई आपको सलाम नहीं कहता, तो हमारा काम है कि हम क्या करें, उसको सलाम करें, उसकी सलामती चाहें। सलामती के पीछे जो मैंने पूरा पैकेज बताया है, इसका मतलब क्या है कि मैं दुआ गो हूं कि खुदा की सारी रास्तबाजी आपकी जिंदगी में आए और खुदा की सारी नेकी, अच्छाई या गुडनेस जो है वो आप में काम करना शुरू करे। सो ये बड़ों का काम था कि वो बच्चों के लिए ये दुआ मांगा करते थे। बस सुलह का मतलब महज इतना नहीं है कि मैं आपकी सुलह चाहता हूं या मैं आपकी सलामती चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि मैं खुदा की रास्तबाजी को तेरे लिए क्लेम करता हूं कि खुदा की रास्तबाजी तेरी जिंदगी में आए। कौन सी रास्तबाजी आए? खुदा की रास्तबाजी। यानी मैं सुलह तो चाहता हूं, लेकिन मैं अपने और तेरे माबैन ही नहीं, या तेरे और दूसरे फरीक के माबैन ही नहीं, मेरी दुआ है कि तेरी सुलह आसमानी बाप से हो जाए। तेरी सुलह किससे हो जाए? आसमानी बाप से हो जाए। मेरी दुआ है कि उसकी रास्तबाजी तेरी जिंदगी में काम करे। मेरी दुआ है उसकी नेकी, उसकी रास्तबाजी, उसकी गुडनेस, उसकी अच्छाई, उसकी भलाई जो है वो तेरी जिंदगी में काम करना शुरू कर दे। सुलह का मतलब फकत इतना नहीं है कि हम सुलह, जमीनी सुलह की बात कर रहे हैं, या शालोम के पीछे भी मतलब सिर्फ जमीनी सलामती, जमीनी सुलह नहीं है, बल्कि इससे मुराद जो है ये आसमानी बाप के साथ सुलह और सलामती की बात की जा रही है। आमीन। अब कलाम मुकद्दस में अगर आप मेरे साथ देख लें, मुकद्दस याकूब का आम खत, नया अहदनामे में मुकद्दस याकूब का आम खत और इसका 3 बाब 17वीं 18वीं 2 आयात में लिखा है, मगर जो हिकमत ऊपर से आती है अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफ दार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वाले के लिए, सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। अब आप रास्तबाजी, जिस रास्तबाजी की दुआ की जाती है, रास्तबाजी को क्लेम किया जाता है, या जिस रास्तबाजी में हम लोगों को शामिल करते हैं, तो उस रास्तबाजी के ताल्लुक से बयान किया गया है, मगर जो हिकमत ऊपर से, या हिकमत या रास्तबाजी ऊपर से आती है, अव्वल तो वो क्या है? वो पाक होती है। वो कैसी होती है? पाक होती है। फिर कैसी होती है? मिलनसार होती है, हलीम और तरबियत पजीर होती है। मिसाल की किताब भी इस ताल्लुक से बयान करती है कि जो तरबियत पजीर है वो जिंदगी की राह पर है। जो तरबियत पजीर है वो क्या है? जिंदगी की राह पर है। तरबियत पजीर का मतलब है जो तरबियत पाना चाहते हैं, जो तरबियत
पाना चाहते, जो सीखना चाहते हैं वो जिंदगी की राह पर हैं। लेकिन जो लोग सीखना नहीं चाहते, जो लोग ये क्लेम करते हैं या इस बात पर उनकी स्टैंडिंग है कि हमें तो सब कुछ आता है तो हमें तो मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो दरअसल वो ज़िंदगी की राह पर नहीं है। तरबियत पजीर सीखने वाले जो हैं वो ज़िंदगी की राह पर हैं। अब यहाँ बयान किया गया है मिलनसार, हलीम और तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से क्या है, लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। ये वो सुलह कराने वाले हैं जिनके खाते में, हिस्से में ये रास्तबाजी आती है, और वो करते क्या हैं, लोगों का मेल मिलाप आसमानी रास्तबाजी और पाकीज़गी से करा देते हैं। इब्रानियों का खत भी इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है, 12वां बाब और इसकी 14वीं आयत में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को न। मेल मिलाप की बात बाइबल मुकद्दस के मुताबिक पाकीज़गी और रास्तबाजी की बात है। आमीन। सुलह, सलामती, मेल मिलाप की बात दरअसल बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये खुदा और इंसान के माबैन पाकीज़गी और रास्तबाजी का दूसरा नाम है। जब हम सुलह की बात करते हैं, सलामती की बात करते हैं, तो दरअसल हम खुदा और इंसान के माबैन सुलह, सलामती, पाकीज़गी, रास्तबाजी की बात करते हैं। आप सलामती से पाकीज़गी को अलग नहीं कर सकते। आमीन। सुलह या सलामती से पाकीज़गी को अलग नहीं कर सकते। आमीन। अगर मैं सुलह की बात कर रहा हूं और उसमें पाकीज़गी नहीं है तो वो कोई सुलह नहीं है। मतलब दो अफ्रीकन लड़ रहे हैं और आपस में गुत्थम गुत्था हैं, या कोई छड़ियों से मार रहे हैं, या एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं, आपने छुड़ा दिया, अलग अलग करा दिया, जप्फी डलवा दी, खत्म हो गया, ये सुलह नहीं, ये तो नई सुलह है, चलो उनका नुकसान होने से बच गया है। लेकिन इस सुलह में चूंकि पाकीज़गी शामिल नहीं है, इस सुलह में खुदा की रास्तबाजी शामिल नहीं है, इसलिए ये सुलह जो है ये बिब्लिकल सुलह नहीं है, ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सुलह नहीं है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सुलह का मतलब है जिसमें पाकीज़गी पाई जाए। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक सलामती का मतलब है जिसमें रास्तबाजी पाई जाए। 85वां ज़बूर, मैं बयान कर रहा हूं कि इसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं। 85वां ज़बूर अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो ज़रूर मेरे साथ मिलकर देखिए। इसकी 10वीं आयत देखेंगे। 85वां ज़बूर और इसकी 10वीं आयत में लिखा है, शफ़क़त और रास्ती। क्या क्या? शफ़क़त और रास्ती बाहम मिल गई हैं। कौन कौन सी चीज मिल गई है? शफ़क़त और रास्ती। अब आगे लिखा है सदाकत और सलामती। सलामती मतलब पीस यानी सुलह, पीस यानी सुलह। सदाकत और सलामती ने एक दूसरे का बोसा लिया है। किस किस चीज ने? सदाकत और सलामती। सदाकत यानी रास्तबाजी, सदाकत यानी रास्तबाजी। तो आप कभी भी या हम कभी भी सलामती से रास्तबाजी को या सलामती या सुलह से पाकीज़गी को अलग नहीं कर सकते हैं। सो जब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ सुलह की बात कर रहे हैं, सलामती की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद दुनियावी सुलह कराना नहीं है। इसका मकसद दरअसल इंसान और खुदा के माबैन सुलह कराने का नाम है, या इसका तज़किरा यहाँ पे किया जा रहा है। आमीन। दुनियावी तौर पे भी सुलह कराना अच्छी बात है। अगर खुदा न खास्ता किसी
के माबैन, दो फरीकैन के माबैन लड़ाई है, झगड़ा है, तो अच्छा है बतौर ईमानदार हम उनकी सुलह करा दें, लेकिन उस सुलह का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बयान किया गया, या यहाँ इस सुलह को उठाकर उस पैराए में इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखा गया इंजीली बयान, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ देख लें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी इंजील, इसका 10वां बाब और इसकी 34वीं आयत, लिखा है, ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि, हाँ जी सब जरा जोर से बोलेंगे, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने नहीं आए खुदा यीशु मसीह, चलवाने। यीशु मसीह ये काम तो करने नहीं आए थे। क्या कहते हैं, मैं सुलह कराने नहीं, क्या करने आया हूं, तलवार चलवाने आया हूं। अब हैरानी होती है, एक जगह खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, दूसरी जगह कहते हैं कि मैं सुलह कराने नहीं आया हूं, मैं क्या करने आया हूं, तलवार चलवाने आया हूं। कोई बताए जरा, मैंने पहले सुनाया हुआ है इस पे कलाम, क्या मतलब है इसका, कोई भी याद है? हाँ जी बोले। शाबाश, वेरी गुड। और कोई? बहुत खूब। हाँ जी, मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूं। अब याद रखें, ये जो तलवार चलवाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब तलवार चलवाना या लिटरली तलवार के इस्तेमाल की बात नहीं की गई है। इसका मतलब अलहदगी है। क्या मतलब है? अलहदगी है, सेपरेशन है। मैं सुलह कराने नहीं, कौन सी सुलह? दुनियावी लोगों के माबैन और रूहानी लोगों के माबैन सुलह कराने नहीं आया हूं। मैं क्या करने आया हूं? तलवार चलवाने, यानी कि सेपरेट करने आया हूं। दुनिया को अलग करने आया हूं और ईमानदारों को अलग करने आया हूं। मेरा मिशन जो है वो जमीन पर कोई सुलह कराना नहीं है। मतलब ये है कि मेरा मकसद दुनियावी लोगों को रूहानी लोगों के साथ इकट्ठा करना नहीं है। मेरा काम है दुनिया में से ईमानदारों को, दुनिया में से कलीसिया को, दुनिया में से चर्च को और डिसाइपल्स को अलग करना और उन्हें अलग जगह पे खड़ा करना। ये मेरा काम है। मैं ये दुनियावी तौर पे, ज़मीनी तौर पे सुलह कराने नहीं आया हूं। मुझे सलामती का शहजादा इसलिए कहा गया है क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं दुनिया में से ईमानदारों को सेपरेट करूं, दुनिया में से लोगों को निकालूं और खुदा बाप से उनका मेल मिलाप करा दूं, उनकी सुलह खुदा बाप से करा दूं, ताकि वो खुदा के साथ हम आहंग हो जाएं, एक हो जाएं और दुनिया से वो क्या हो जाएं? अलग हो जाएं। इसलिए क्या कहा यीशु मसीह ने? मैं सुलह कराने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं? तलवार चलवाने आया हूं। आगे इसकी डिटेल भी बताई है खुदावंद यीशु मसीह ने, तफसील भी दी है, आप घरों में जाके पढ़ सकते हैं। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह दुनिया से अलग करने के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए ईमानदारों को, ताकि उनका मेल मिलाप जो है वो खुदा से कराया जाए। इसी तरह अगर आप मेरे साथ देख लें, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब, मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 15वां बाब और इसकी 18वीं आयत से खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है। अगर दुनिया तुमसे क्या करे?
अदावत रखती है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी क्या की, अदावत रखी। अब देखें और गौर करें थोड़ा जो खुदावंद यीशु मसीह ने पहले बयान किया, मैं सुलह कराने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं, तलवार चलवाने आया हूं। अब जो मैंने बयान किया है कि अलहदगी, सेपरेशन जो है वो किनसे करनी है, दुनिया से। किनसे करनी है, दुनिया से, यानी उन लोगों से जो जिस्मानी लोग हैं और जो मसीह की इंजील, उसकी बशारत, उसकी रास्तबाजी पर ईमान नहीं रखते हैं, उनकी बात की जा रही है कि अगर दुनिया तुमसे क्या करती है, अदावत रखती, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी क्या की है, अदावत, लड़ाई है। आप जितना मर्जी दुआएं करें पूरी दुनिया में अमन हो जाए, नहीं हो सकता है, अमन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा ईमानदारों के खिलाफ लड़ती रही है, शुरू से ही ऐसा है। पैदाइश की किताब से ये जंग शुरू हुई है, आज तक ये जंग जारी है। और जब तक खुदावंद यीशु मसीह अपनी सेकंड कमिंग में नहीं आ जाते, दूसरी आमद उनकी नहीं हो जाती, ये लड़ाई, ये झगड़े, ये जंगें, ये जारी रहेंगी। ईमानदार जितनी मर्जी दुआएं करते रहे पूरी दुनिया में अमन हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। दुनिया ने तुमसे क्या करनी है, अदावत रखनी है। उन्होंने तुम्हारे साथ झगड़ा करना है, लड़ाई करनी है। आज जंग क्या है? जंग यही है, जंग हमेशा यही है। अदल के खिलाफ जंग है, रास्तबाजी के खिलाफ जंग है, ईमानदारों के खिलाफ जंग है, खुदा के लोगों के खिलाफ क्या है, दुनिया की जंग है। और दुनिया खुदा के खिलाफ, चूंकि दुनिया जो है इसका सरदार कौन है, इब्लीस। कौन है? इब्लीस है। सो जो दुनिया का सरदार है वो आसमानी बाप के खिलाफ और उसके लोगों के खिलाफ हमेशा जंग करता रहा है, आज भी कर रहा है। और जब तक खुदावंद यीशु मसीह आ नहीं जाते ये जंग जारी रहेगी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने पता अपने शागिर्दों के लिए, ईमानदारों के लिए 17वें बाब में जब दुआ की है, उनके लिए बिल्कुल ये दुआ नहीं की ओ खुदाया इन पे कोई दुख ना आए, कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई तकलीफ ना आए। यहाँ तक कि पतरस के लिए भी जब खुदावंद यीशु मसीह को पता है कि, और शागिर्दों के लिए भी पता है कि इनको इब्लीस ने इस्तेमाल करना है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा या उनके लिए ये दुआ नहीं की कि इनको इब्लीस इन पर अटैक ना करे, मैं इनके गिर्द ये कर देता, वो कर देता। नहीं, खुदावंद यीशु मसीह की दुआ शागिर्दों के लिए, डिसाइपल्स के लिए, ईमानदारों के लिए ये थी कि खुदावंद जब इन पर ये काम, ये आजमाइशें आए, ये मुसीबतें आए, इब्लीस हमलावर हो, तो इनके ईमान को मजबूत करना। आमीन। इनके ईमान को क्या करना? मजबूत करना। सो याद रखें, बाइबल मुकद्दस की तालीम हरगिज ये नहीं है कि ईमानदारों पे मुसीबतें नहीं आएंगी, दुख नहीं आएंगे, तकलीफें नहीं आएंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी तालीम देता है तो गलत तालीम देता है। बाइबल मुकद्दस की सच्चाई है। और हमेशा आप देखते हैं ईमानदारों के खिलाफ हमेशा इब्लीस नबूर्द आजमा रहा है, जंग करता रहा है, लड़ाई करता रहा। यहाँ तक कि खुदावंद यीशु मसीह अपने ताल्लुक से बयान करते रहे कि इस दुनिया ने तो मुझसे अदावत रखी है, मुझे सताया है, तंग किया तो मुझे सताया, घर के मालिक को सताया है, तो तुम्हें क्यों नहीं सताएंगे। क्या लिखा है? उसने, यानी दुनिया ने तुमसे पहले मुझसे भी क्या रखी है? अदावत रखी है। अगर तुम दुनिया के होते, अगर तुम क्या होते? दुनिया के होते, तो दुनिया अपनों को क्या करती है? अजीज रखती है। क्या करती है? अजीज रखती है। भाई दुनिया की आपस में तो लड़ाई नहीं है, ईमानदारों के खिलाफ लड़ाई है। इसका मतलब जो यूनानी मतन में बयान किया गया है, या इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, इसका मतलब यह है कि दो गिरोह हैं। एक गिरोह वो है जिनकी रूट्स दुनिया में हैं,
एक गिरोह वो है जिनकी रूट्स खुदावंद यीशु मसीह में हैं। सो अब दो गिरोह हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, क्योंकि जो खुदावंद के लोग हैं उनकी लॉ लगी है खुदावंद के साथ, लेकिन इसके अगेंस्ट जो दुनिया है, चूंकि हम दुनिया के नहीं, हम दुनिया के साथ मुत्फिक नहीं, हम दुनिया के साथ खड़े नहीं, उसकी तालीम के साथ खड़े नहीं और एग्री नहीं करते, इसलिए दुनिया हमारे क्या रहेगी? खिलाफ रहे। आप आज मानना शुरू कर दें इनकी सारी बातों को, सारी परसिक्यूशन खत्म हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि हम मानते नहीं हैं। हम मानते इसलिए नहीं क्योंकि हमारी रूट्स दुनिया में नहीं है, हमारी रूट्स खुदावंद यीशु मसीह में हैं। क्या लिखा है? अगर तुम दुनिया के होते, यानी उनके साथ एग्री करते, तो दुनिया क्या करती? तुम्हें अजीज रखती। लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं, चूंकि तुम्हारी रूट्स जो हैं वो दुनिया में नहीं, बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से क्या किया है? चुन लिया है। प्रेज गॉड। इस वास्ते दुनिया तुमसे क्या करती है? अदावत। तुम्हें इसलिए सताया जाता है क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कर लिया है? चुन लिया है। और तुम्हें सताया जाएगा क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें अलग किया है। मेरी रास्तबाजी तुम्हारी जिंदगियों में पाई जाती है। तुम्हारी जॉब्स पे तुम्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और तुम्हारे साथ हर तरह से बदसलूकी से पेश आया जाएगा। तुम्हारे स्कूल कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा और हर तरह से तुम्हारे साथ ज्यादतियां की जाएंगी, परसिक्यूट किया जाएगा, सताया जाएगा और तुम्हें मुसीबतों का, अजियतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें दुनिया से क्या कर लिया है? अलग कर लिया है, चुन लिया है। दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें ना सताती। आज जो ना सताने की बात करते हैं ना, जो अमन की बात करते हैं, ये जितने भी खास तौर पे ये जो हार्मनी वाले हैं, मजहबी हार्मनी वाले और इस तरह के और बहुत सारे लोग जो मजहबी हमांगी चाहते हैं, वो सारे मजहब एक ही हैं। ये दरअसल इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने चुना नहीं है। इनकी रूट्स कहाँ पे हैं? दुनिया में। और जब ये कलाम बयान करता है कि जब तुम मुत्तफिक होगे तो वो तो तुम्हें नहीं सताएंगे, वो तुम्हें नहीं सताएंगे। वो सताएंगे क्यों? क्योंकि तुम दुनिया से क्या हो गए हो? अलग हो गए। तुम्हें चुन लिया गया है, अलग कर लिया गया है। इसलिए आगे खुदा का कलाम बयान करता है, जो बात मैंने तुमसे कही थी उसे याद रखो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा। अगर मालिक को सताया है, तंग किया है, तो तुम्हें भी सताएंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे? तुम जो हो वो मालिक से बड़े तो नहीं हो कि मालिक को सताया गया, मालिक को सलीब तक दे दिया गया, कोड़ों से उसका बदन छलनी कर दिया गया, उसे ज़तोकोप किया गया, मारा गया, उसका मजाक उड़ाया गया, ठट्ठों में उड़ाया गया, उसके घोंसे मारे गए, मुक्कों से उसको मारा गया और हर तरह से उसकी इंसल्ट की गई। और तुम कहते हो नहीं, हमारी तो बेइज्जती हो गई है, हमारी तो इंसान, हमारे तो राइट्स बड़े हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने किस दिन राइट्स की बात की थी? की या कोई यीशु मसीह ने राइट्स की बात? बताएं। खुदावंद यीशु मसीह को भेजा, वो सता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई राइट की बात नहीं की। ये जब गेत्सेमनी बाग में गए हैं गिरफ्तार करने के लिए, रात के टाइम गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई राइट की बात की है कि जो मेरा राइट है कि आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, मेरा राइट है आप रात को मेरा मुकदमा नहीं चला सकते, मेरा राइट है कि ये लोग मेरे मुकदमे में शामिल नहीं हो सकते, मेरा राइट है कि आप मेरे खिलाफ ये झूठी गवाहियां नहीं दे सकते। बिल्कुल भी किसी राइट की बात नहीं की। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि मैं दुनिया से अलग हूं और मुझे वाकई सताया जाएगा। इसलिए जब मसीहों पे इज़हार रसानी होती है और मसीहों को सताया जाता है तो याद रखेंगे इसलिए है क्योंकि हम दुनिया में नहीं हैं और दुनिया के नहीं हैं, दुनिया में शामिल नहीं हैं, हम दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, उनके साथ मुत्तफिक नहीं हैं। इसलिए हमें सताया जाता है और सताया जाएगा। हमारे लोगों में क्यों ये तजब्जुब और परेशानी पाई जाती है? क्योंकि तालीम नहीं दी जा रही है, तालीम की कमी है। जब कहीं कोई हमला हो जाता है, अटैक हो जाता है, मसीहों को सताया जाता है, तो यहाँ अटैक होता है, कराची में एहतजाज हो रहा है, फलां जगह पे एहतजाज हो रहा है। क्यों एहतजाज हो रहा है? नंबर टांग रहे हैं, बस
अपने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, ये बड़ा हमारा हमदर्द है। हमदर्द नहीं है, ये दुश्मन है मसीहत के। ये जितने एहतजाज करने वाले ये क्या है? मसीहत के दुश्मन है। इन्हें मसीहत की तालीम का ही पता नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने किसी भी तरह से प्रोटेस्ट करने की या कोई ऐसी तालीम हमें नहीं दी कि हम इनके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए, डिसाइपल्स के लिए, उनके ईमान के लिए दुआ की है कि खुदावंद इनका ईमान जाता ना रहे, इनका ईमान जाता ना रहे, ये मजबूती से इब्लीस का मुकाबला कर सकें खड़े होकर। और यही हमारी दुआ एक दूसरे के लिए होनी चाहिए। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह, एक आखिरी आयत जो यहाँ पे बयान है, पढ़ें। लिखा है 21वीं आयत, लेकिन ये सब कुछ वो मेरे नाम के सबब से, किसके सबब से? मेरे नाम, यानी मेरी वजह से करेंगे, तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वो मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। उन्होंने मेरे साथ भी ऐसे किया, वो तुम्हारे साथ भी ऐसे करेंगे। आमीन। इसलिए याद रखें, जिस सुलह और सलामती की बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, ये दुनिया के साथ सुलह की बात नहीं है। दुनिया में नोबेल प्राइजेस दिए जा रहे हैं, वो फलां ने इसकी सुलह करा दी, उसको नोबेल प्राइज दे, ये दुनियावी सुलह है। लेकिन जिस सुलह की बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं वो ये है कि हम लोगों को सेपरेट करें, दुनिया से अलग करें। आप कभी भी देखें, ईमानदार जो हैं वो कभी भी दुनियावी लोगों के साथ गुजारा नहीं कर सकते। कम से कम आपने खुद अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा किया होगा, आप 10-15 मिनट से ज़्यादा उनके साथ वक्त नहीं गुजार सकते हैं। ऐसा ही है। अगर आप गुजार सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी फिर सेपरेट होने की ज़रूरत। कई लोग बहुत ठट्ठों में टाइम उड़ाते हैं और ऐसे दोस्तों के साथ बैठे रहते, सारा दिन चुगलियाँ, कभी किसी की बात, कभी किसी की बात। यकीन जाने, अगर आप ईमानदार हैं तो आप 10 मिनट से ज़्यादा इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपका ज़मीर ही इजाज़त नहीं देगा। मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं सुबह दुआ करके आया हूँ, कलाम पढ़ा है, ये मुझे क्या सारा दिन मुझे ऐसी बातें, कॉमेडी की बातें सुनाई जा रही है। बिल्कुल आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि आपकी रूट्स जो हैं वो किस में लगी हैं। इसलिए यीशु मसीह जिस तलवार चलवाने की बात करें वो ये तलवार है कि आप उनके साथ रह ही नहीं सकते हैं, आप उनके साथ गुजारा कर ही नहीं सकते हैं। और टाइम ज़्यादा हो गया, मैं इसको यहीं पे क्लोज करूँगा, ख़त्म करूँगा इस आखिरी बात के साथ कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ज़िम्मेदार ठहराया है। ये जो सुलह कराने वाले हैं ये दरअसल ईमानदार हैं। कौन है? ईमानदार हैं। और किनके माबैन सुलह कराते हैं? दुनिया के लोगों को खुदा से मुतारफ़ कराते हैं, दुनिया में से लोगों को लेते हैं और उन्हें सेपरेट करते हैं। जिस तरह से जो काम मसीह ने किया है, उसने दुनिया में से लोगों को लिया है और क्या कर दिया है? हमें सेपरेट कर दिया है, अलहदा कर दिया है। अब हमारी बाप के साथ क्या हो गई है? सुलह हो गई है। लेकिन दूसरा गिरोह जो है, जो जिनमें से हम लिए गए हैं, इनकी अभी तक सुलह नहीं हुई। मुबारक हैं वो जो इस गिरोह में से लोगों को लेते और इस गिरोह में लाकर उन्हें खड़ा करते, शामिल करते हैं। दुनिया में से निकाल कर चर्च में लाते हैं, दुनिया में से निकाल कर कलीसिया में शामिल करते हैं। वो मुबारक हैं। वो क्या हैं? और वो क्या कहलाएंगे? खुदा के बेटे के, क्योंकि बेटे ने भी यही काम किया है और बेटे के बाद भी जितने लोग ये काम करेंगे वो भी क्या कहलाएंगे? बेटे कहलाएंगे। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से हमें बरकत दे। आमीन।